Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of your ENT series of lectures, that is otitis media. It is completely referring to the infections, the inflammation of the middle ear, right? In the previous chapter, I have discussed all about the otitis externa. That was the disease, that was the infection of the external ear, right? We discussed each and everything, right? So now time for otitis media. Otitis media, by definition, it is, as I mentioned, the inflammatory condition of middle ear cleft. मिडिल ईयर क्लेफ्ट में सिर्फ मिडिल ईयर कैविटी नहीं आती, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। इसके अंदर ईस्टेशन ट्यूब भी आ जाती है, ठीक है। एडिटस एंट्रम, दैट इज़ ओपनिंग टुवर्ड्स द मेस्टोइड एंट्रम। उसके अलावा मेस्टोइड एंट्रम इटसेल्फ और उसके अंदर मौजूद मेस्टोइड एयर सेल्स, ठीक है। सो whenever I say otitis media, so it is referring to the inflammatory condition of what? Middle ear cleft. And middle ear cleft is not only the middle ear cavity. If you see, so this is the external auditory canal, right? This is the auricle, or whatever you say, pinna, and this is the external auditory canal. This is the tympanic membrane, एंड राइट आफ्टर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिस इज़ द टिम्पेनिक कैविटी, जिसको आप मिडिल ईयर कैविटी कहते हैं। और इसकी जो इंटीरियर वॉल होती है उसमें एक ओपनिंग होती है फॉर द यूस्टेशन ट्यूब, और इसकी पोस्टीरियर वॉल में ओपनिंग होती है, दैट इज़ द एडिटस एंट्रम, दैट इज़ ओपनिंग टुवर्ड्स द मेस्टोइड एंट्रम, राइट। और जो इसके आगे जो मेस्टोइड एंट्रम होता है उसके अंदर कुछ कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम मेस्टोइड एयर सेल्स कहते हैं। सो दिस एंटायर मेक्स अप द मिडिल ईयर क्लेफ्ट, right? Middle ear cleft includes not only the middle ear cavity, but it includes the eustachian tube, it includes the edetus antrum, and includes the mastoid antrum. Edetus is actually the opening towards the mastoid antrum. What is mastoid antrum? It's simply the mastoid antrum is simply the cavity present in the mastoid bone. And what are the mastoid air cells? These are the tiny cells that are present in this cavity, right? If this is the mastoid bone, let's suppose this is the mastoid bone, so this cavity is called the mastoid antrum, और इसके अंदर छोटे छोटे जो cells मौजूद हैं with this septa in between, these cells are called mastoid air cells, right? They have got their own function, we'll talk about this, but I hope now you know what actually is otitis media. Right, beta. Now there are two clinical types of the otitis media. One is the suppurative, in which there is lots of pus formation in the middle ear cleft, and one is the non-suppurative variety, in which there is no pus formation. Okay, non-purulent or non-suppurative. Right. Okay, the suppurative variety can be the acute otitis media or chronic otitis media. Chronic can be either tubotympanic or aticoantral. Right, we'll talk about each and everything in detail. Right, and non-suppurative type include the OME, that is the otitis media with effusion, and another type is the aero-otitis, right, जिसको ओटाइटिक बेरोट्रामा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को डिस्कस करते हैं सुपरेटिव के अंदर, फिर उसके बाद क्रॉनिक की जो दोनों टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको, एंड देन लास्टली एरोटाइटिस, ठीक है बेटा, इस तरीके से। So starting with acute otitis media, a type of the suppurative otitis media. So acute otitis media is acute inflammation of the lining mucous membrane of the middle ear cleft. So whenever I say the middle ear cleft, now you must be clear, it is referring to the middle ear cavity, eustachian tube, edetus antrum, mastoid antrum, and the mastoid air cells, right? So the mucous membrane ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। व्हाट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया? इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ओके, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वो कितना वर्स होगा, कितना
लेस सीवियर होगा, डिपेंड करता है कुछ चीज़ों में, जैसे कि वायरुलेंस ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है उसकी वायरुलेंस क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, एंटीबायोटिक थेरेपी आपने दी है नहीं दी है, एंड द डिग्री ऑफ द न्यूमेटाइजेशन ऑफ द मेस्टोइड, के एयर सेल्स की क्या जो है उसके अंदर लेवल है, उसकी डिग्री है मेस्टोइड बोन के अंदर। न्यूमेटाइजेशन रेफरिंग टू एक्चुअली द presence of the mastoid air cells, right, and the history of the previous infection। ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिपेंड करेंगी कि जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वो किस तरह का होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, बहुत हल्का होगा। जैसे अगर फ़र्ज़ करें पहली चीज़ है इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस, इफ द वायरुलेंस इज़ वेरी मच हाई, the inflammatory reaction will be surely very much severe। Okay, similarly, if the patient is showing less resistance towards the microorganism, then the inflammatory reaction will surely be high, right beta, and if you do not take antibiotic therapy, there will be high inflammatory reaction। So these are the things that will determine the type of the inflammatory reaction। Okay, एज की जहाँ तक बात है तो ये खास करके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन्फेंट्स में कॉमन होती है, वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड एंड लेस कॉमन इन एडल्ट्स। उसकी वजह क्या है, वाई इन इन्फेंट्स, बिकॉज इन इन्फेंट्स यूस्टेशन ट्यूब इज़ मोर वाइडर, मोर शॉर्टर एंड हॉरिजॉन्टली प्लेस, एंड बिकॉज इट इज़ मोर वाइडर so it is easy for the bacteria to enter, and because it is shorter, so it is easy for the bacteria to colonize there, and because it is horizontally placed, so also the entry is very feasible। Okay, so yeah, these are the points, this is the thing why it is common in infants। ये देखिए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना आसानी बच्चों के अंदर यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में आ जाएगा और मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन करा देगा, ठीक है, दैट इज़ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। लेट मी अगेन रिपीट द सेम थिंग, व्हाई दिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज़ मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड नॉट इन एडल्ट्स, क्योंकि कंपेयर टू एडल्ट्स इन्फेंट्स की जो यूस्टेशन ट्यूब है, जो कि सोर्स है एक्चुअली इन्फेक्शन के आने का, वो ज़्यादा वाइड होती है तो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से उसमें चला जा सकता है। शॉर्ट होती है तो उसमें कॉलोनाइज करना आसान होता है, ईजिली बैक्टीरिया फॉर्म द कॉलोनीज ओवर देयर, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर नैरो होती है स्टेशन ट्यूब और इतनी शॉर्ट नहीं होती, वो थोड़ी साइज़ में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी वहाँ एडल्ट्स के अंदर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इतना कॉमनली नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ज़रा आगे चलते हैं अभी, राइट। विल नाउ टॉक अबाउट बेटा द ईटियोलॉजी ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। मैं बताता हूँ रूट क्या है, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचता है आपके मिडिल ईयर में और मिडिल ईयर क्लेफ्ट को इन्फेक्ट करता है। एक तो रूट आपको पता है यूस्टेशन ट्यूब वाला, ठीक है, बाकी भी रूट है मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताता हूँ और पॉजिटिव एजेंट बताता हूँ कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं। रूट एक तो आपने अभी जो डिस्कस किया जिसकी वजह से ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, वो है एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स डायरेक्टली थ्रू द यूस्टेशन ट्यूब लाइनिंग और सब म्यूकोजल लिम्फेटिक्स अलोंग द ट्यूब, ठीक है। अब नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन मौजूद है, नेजोफेरिंग्स में मौजूद इन्फेक्शन यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू, बताइए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बेटा इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स में मौजूद है वो मिडिल ईयर में आ जाए। अब नेजोफेरिंग्स का इन्फेक्शन मिडिल ईयर में कैसे आएगा, या तो डायरेक्टली यूस्टेशन ट्यूब लाइनिंग के थ्रू, या तो फिर यूस्टेशन ट्यूब के सब म्यूकोजा के अंदर जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं उनके थ्रू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा इसके अंदर, बहुत आसान सी बात है। नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन मौजूद है, वो इन्फेक्शन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेजोफेरिंग्स से मिडिल ईयर में आ जाए, कैसे आएगा, या तो डायरेक्टली जो म्यूकोजा है यूस्टेशन ट्यूब की उसके थ्रू, या फिर म्यूकोजा से नीचे सब म्यूकोजा में जो लिम्फेटिक्स मौजूद हैं उसके थ्रू, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये कंडीशन इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो यूस्टेशन ट्यूब होता है ज़्यादा वाइड होता है, ज़्यादा शॉर्ट होता है, ज़्यादा वाइड होता है और ज़्यादा लेंथ में शॉर्ट होता है, ठीक है, ये वजह है। दूसरा रूट जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है आपके मिडिल ईयर में, थ्रू परफोरेटेड ईयर ड्रम परफोरेटेड हो, तो फ़र्ज़ करें ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, और ये आपका पिन्ना है और ये रही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें परफोरेशन है, तो इस परफोरेशन के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिडिल ईयर में आ सकता है। या फिर अगर आपने ग्रोमेट लगवाया, ग्रोमेट एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहर से आप इंसर्ट करते हो, तो उसके थ्रू भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो अभी आपको रूट क्लियर हो गया बेटा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मिडिल ईयर में पहुंचा, और मिडिल ईयर में पहुंचने के बाद मिडिल ईयर क्लेफ्ट का इन्फेक्शन कराया। क्लेफ्ट में सिर्फ मिडिल ईयर कैविटी नहीं आती, याद रखें बच्चा, इसके अंदर ईस्टेशन ट्यूब भी आती है, एरिटा सेंट्रम भी आता है, मेस्टॉइड एंट्रम भी आता है, मेस्टॉइड एयर सेल्स भी आते हैं। ठीक है, चलें, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा? नेजोफेरिंक्स से आ सकता है। नेजोफेरिंक्स से कैसे आ सकता है मिडिल ईयर में? डायरेक्टली ईस्टेशन ट्यूब की लाइनिंग से, मिकोजल लाइनिंग से, या फिर सब मिकोजा में मौजूद लिम्फेटिक्स के थ्रू। ईस्टेशन ट्यूब के सब मिकोजा में मौजूद लिम्फेटिक्स के थ्रू, या फिर ज़रूरी नहीं है नेजोफेरिंक्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, बाहर से भी आ सकता है। ठीक है, इस रूट से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आ सकता है, लेकिन वो तब जब आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन हो ना, तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ पाएगा। ठीक है, कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, the risk factors are, I should say, the predisposing factors that actually predispose you to develop this infection, acute otitis media. They include, number one, the rhinosinusitis. Rhinosinusitis, that is the inflammation of the nose and the sinuses. तो यहाँ से फिर इन्फेक्शन जो है ना, यूस्टेशन ट्यूब से मिडिल ईयर में आ सकता है। टॉन्सिलाइटिस का टॉन्सिलाइटिस, यहाँ से इन्फेक्शन यूस्टेशन ट्यूब में जा सकता है, यूस्टेशन ट्यूब से मिडिल ईयर में आ सकता है। इनलार्ज्ड एडिनोइड्स, या it's the same condition. Pharyngitis, the infection can go through the eustachian tube into the middle ear. And the faulty method of the infant feeding, right? And the operations of the nose and the throat, especially when the post-nasal peg has been placed. ENT के जो ऑपरेशन होते हैं उसके बाद जब पोस्ट नेजल पैक रखा जाता है ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए, नाक के पीछे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेयर्स होते हैं, पोस्टीरियर कौंछा जो होते हैं, उसमें उसको पैकिंग करते हैं ना, और वो जब जाहिर सी बात है बाहर से कोई पैकिंग करेंगे, चीज़ रखेंगे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होगा और वहाँ से फिर मिडिल ईयर में जा सकता है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द बेटा etiology इन विच आई डिस्कस द रूट। यू आर क्लियर विद द रूट कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच सकता है। देखिए, नेजोफेरिंक्स का इन्फेक्शन ईस्टेशन ट्यूब में गया, ईस्टेशन ट्यूब से फिर गया मिडिल ईयर में। नेजोफेरिंक्स में कितनी सारी कंडीशंस में आपको बता दी। राइनोसाइनसाइटिस हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, इनलार्ज एडिनोइड हो सकते हैं, फेरेंजाइटिस, सारे इन्फेक्शन they are somehow they are in this particular region, nasopharyngeal region. So from this particular region they are going through the eustachian tube into the middle ear, right? कॉजेटिव एजेंट कौन से होते हैं? वही होंगे जो ये कंडीशंस करवाते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे कॉमन तो स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, और बाकी मैं आपको बताता हूँ। कॉजेटिव एजेंट्स इंक्लूड बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, राइट, निमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जस्ट अ सेकेंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा मॉक्सरेला कैटरालिस, स्टेफाइलोकोकस, और ये वायरल भी हो सकता है। याद रखें, इसके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के कॉजेटिव एजेंट से सवाल आता है लाजमी। ठीक है, यहाँ पे सूडोमोनास नहीं है, ये बात याद रहे। ठीक है, सूडोमोनास वाज देयर इन ओटाइटिस एक्सटर्ना, राइट? सो बी केयरफुल विद दिस। सो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स जो कि ओटाइटिस मीडिया करा सकते हैं, पर्टिकुलरली द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, right? So yeah, now let's talk about the pathology of the acute otitis media. There are actually 4 stages in which the disease, the acute otitis media progresses. There are 4 stages. One is the stage of the tubotympanitis, another is the stage of the catarrhal inflammation, then comes the stage of the suppuration, and lastly there will be the stage of either resolution or stage of complication. ठीक है, वन इज़ द स्टेज ऑफ द tubotympanitis. एक्चुअली इसमें क्या होता है, देयर इज़ द engorgement एंड द edema ऑफ द लाइनिंग ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। पहली चीज़ देखिए, हमने क्या कहा बेटा, acute otitis मीडिया क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट दैट इंक्लूड द मिडिल ईयर कैविटी, ईस्टेशियन ट्यूब, एरिटा सेंट्रम, मेस्टॉइड एंट्रम, मेस्टॉइड एयर सेल्स। इन्फ्लेमेशन है ना मिडिल ईयर क्लेफ्ट की। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट की लाइनिंग है उसमें एंगॉर्जमेंट स्टार्ट होगी, वो एडिमेटस होगी। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो लाइनिंग है मिडिल ईयर क्लेफ्ट की उसमें एक्सुडेट आने लगेगा। ठीक है, और वो एक्सुडेट लाइनिंग से फिर बाहर कैविटी में भी आएगा और फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा मिडिल ईयर में और मेस्टॉइड ईयर सेल्स के अंदर।
एंड दिस एक्सुडेट इज, रिमेंबर, इट इज सीरस। क्या कहा मैंने? इन्फ्लेमेशन 4 स्टेप्स में प्रोग्रेस करती है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया किसको कहते हैं? मिडिल ईयर क्लेफ्ट की इन्फ्लेमेशन को, ऐसा ही है। अब वो इन्फ्लेमेशन 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है, ठीक है। पहले स्टेज में क्या होता है? मिडिल ईयर क्लेफ्ट, जिसमें मिडिल ईयर कैविटी आ जाती है, स्टेशन ट्यूब आता है, उनकी जो लाइनिंग वॉल है उसमें एडिमा, इंगॉर्जमेंट मिलेगी। दूसरी स्टेज में क्या होगा? एक्सुडेशन होगी। वो एक्सुडेटिव फ्लूइड जो है वो वाल से बाहर आएगा और ल्यूमन के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, मिडिल ईयर कैविटी में कलेक्ट हो जाएगा, मेस्टोइड ईयर सेल्स में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टेज ऑफ सप्रेशन, जिसमें क्या होता है? मिडिल ईयर क्लेफ्ट इज फिल्ड विथ not only the exudate only, see, not only the serous exudate, but now the middle ear cleft is filled with the mucopurulent exudate, ठीक है। दिस इज नॉट, यू नो, दिस इज म्यूकोप्यूरुलेंट, दिस इज नॉट द सीरस एक्सुडेट ओनली, दिस इज़ द म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सुडेट, जिसमें म्यूकस डिस्चार्ज और साथ में पस डिस्चार्ज भी है, या फिर फ्रेंकली पस भी हो सकता है, सिर्फ पस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूँ कि जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो मिडिल ईयर क्लेफ्ट की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले आप शुरू के दिनों में देखोगे कि जो लाइनिंग वॉल है उसके अंदर आपको इंगॉर्जमेंट, एडिमा मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? एक्सुडेट आएगा वॉल के अंदर, और वो वॉल से एक्सुडेट निकल के आपके ल्यूमन में भी आने लगेगा, मिडिल ईयर कैविटी में आएगा, मेस्टोइड ईयर सेल्स के अंदर आएगा। फिर एक्सुडेट सीरस नहीं लगेगा, अब साथ में म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज आएगा, पस डिस्चार्ज आएगा और म्यूकसी डिस्चार्ज आएगा, या फिर सिर्फ पस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है चौथी स्टेज, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, या here comes stage 4, that is the stage of the resolution और stage of the complication। अगर आपने appropriate treatment दे दिया तो फिर तो रेजोल्यूशन हो जाएगी और पस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो फिर तो वो डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेट कर जाएगी, और जो पस जमा हुई थी स्टेज 3 में, वो पस जो है ईयर ड्रम को परफोरेट करते हुए बाहर आ जाएगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, या फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर आपने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया, मेस्टोइडाइटिस वगैरह हो सकती है, ठीक है। होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा। 3 स्टेजेस पीछे डिस्कस की, चौथी स्टेज है स्टेज ऑफ द रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने ट्रीटमेंट वक्त पे दे दिया और अप्रोप्रिएटली दे दिया, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर दी, तो कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी और पस भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं इसके अंदर। अगर नहीं दिया तो कंडीशन कॉम्प्लिकेट कर जाएगी, जो पस जमा हुई थी मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर वो अब ईयर ड्रम को परफोरेट करते हुए बाहर आ जाएगी, सही है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। व्हाट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विथ acute otitis media? There is earlier the fullness in the ear, feeling of fullness in the ear, लेटर बाद में सिर्फ फुलनेस फील नहीं होती, कान भारी भारी फील नहीं होता, बाद में डीप सीटेड पेन भी होता है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बात याद रखना, डीप सीटेड पेन इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द acute otitis media, and this deep seated pain is very much severe when the pus is under pressure before perforation of the tympanic membrane। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें, ये है ना आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पिन्ना मौजूद है, सही है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडिल ईयर कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर पस मौजूद है। अभी तक ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट नहीं हुई, रप्चर नहीं हुई, ये पस अंदर मौजूद है। बाद में तो क्या होता है कि ये जो पस है ना, इसको परफोरेट करके बाहर आ जाती है। ये मैंने कॉम्प्लिकेशन में बताया, अगर आप देखो ट्रीटमेंट नहीं दोगे, पस जो है ईयर ड्रम को परफोरेट करती हुई बाहर आ जाएगी, ठीक है। या बट what I'm trying to actually deliver here is initially fullness फील होगी, क्योंकि कान के अंदर पस accumulated है मिडिल ईयर कैविटी के अंदर खसूसन, ठीक है। लेकिन बाद में डीप सीटेड पेन होता है और बहुत सीवियर होता है, क्योंकि पस का प्रेशर होता है, ठीक है, बिकॉज पस इज अंडर प्रेशर। जब तक इस ईयर ड्रम में परफोरेशन नहीं आई तब तक बहुत दर्द होगा। जब इसमें परफोरेशन आ जाएगी फिर तो बाहर पस आने लगेगी, फिर दर्द नहीं होगा, इतना डीप सीटेड पेन नहीं होता। पेन is very much severe, remember, it is deep seated pain. You can easily understand this beta. You can see this is the eardrum, and here is the pus present in the middle ear cavity. This middle ear cavity, this pus present in the middle ear cavity is at under very much pressure.
because the pus has no way to go out. But once the pressure is very much high, it will produce some perforation in this tympanic membrane and the pus will get out through this route and the pain will be reduced. ठीक है, ओके देखें यही बात मेंशन है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, कि पेन इज़ वेरी मच सीवियर व्हेन द पस इज अंडर प्रेशर बिफोर परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लेकिन बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, पस बाहर रिलीज हो जाती है, तो पेन भी रिलीव हो जाता है. ठीक है, ओके राइट बेटा, या so this is the very first clinical picture. There is earlier there is the feeling of fullness in the ear, later there is appearance of the pain and the pain is very much severe. ओके और जाहिर सी बात है बेटा, पस फिल्ड है मिडिल ईयर के अंदर, तो साउंड वेव्स कंडक्ट नहीं होंगी, देयर विल बी कंडक्टिव डीफनेस, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, पस तो है ही है, और ब्लड स्टैंड आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी फिर पस डिस्चार्ज के अंदर क्या कहते हैं, ब्लड भी आने लगेगी, ब्लडी स्पॉट्स भी आने लगेंगे. बात करते हैं ज़रा एग्जामिनेशन पॉइंट्स को, फिर आगे चलते हैं. राइट बेटा, इन एग्जामिनेशन look, I told you the clinical picture, what patient actually presents to you. The patient says, okay, I have feeling of fullness in my ear and there is conductive deafness, some discharge coming out. Main thing is examination. Look, main thing is examination actually. When you look into the ear using the otoscope, you will see the tympanic membrane, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपको बड़ी प्रोमिनेंट ब्लड वेजल्स नज़र आएंगी. शुरू में तो वो ब्लड वेजल्स जो बन रही होती हैं नहीं द न्यूअर ब्लड वेजल्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड, दे आर अलोंग द हैंडल ऑफ द मेलियस. लेटर दे इन्वॉल्व द पार्स फ्लैसिडा and the periphery of the pars tensa and then ultimately the whole tympanic membrane. It's an inflammatory process. Acute otitis media. So, and there used to be, formation of the new blood vessels and as a response of the inflammation. So acute otitis media is an inflammatory response. So in the inflammatory condition, the formation of the blood vessels and their rupture is not a new thing. It is what actually happens, right? Okay. So the blood vessels are formed. Firstly, they appear along the handle of the malleus and they later involve the pars flaccida and the periphery of the pars tensa and then ultimately whole tympanic membrane. I can show you this appearance of the blood vessels from the book. Just a second. Okay, there we can go with this picture. I hope the visibility is better. So firstly look at the picture A. Can you see the blood vessels? The new formed blood vessels are only along the handle of the malleus. You can see they are only along the, this is the handle of the malleus, right? This is the handle of the malleus, this is the umbo. You can see the blood vessels are being formed right over there. But later you will see in picture B, can you see the pars flaccida is involved and the periphery of the pars tensa is involved, right? The periphery. Okay, and in picture C you can see the entire tympanic membrane is involved. Okay, so I actually want to say here that initially there is involvement of this handle of the malleus, new blood vessels are being formed, and then you can see there is involvement of, along with this handle of malleus, the pars flaccida is completely involved and the periphery of the tensa is involved, center is not involved, and later the entire tympanic membrane is involved. और एक बात नोट करें कि ये जो ये नॉर्मल लुकिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, बाहर से उसके सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ये फ्लैसिडा है, ये अम्बो है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है, लेकिन पिक्चर डी में नोट करें कि ये सारे फीचर्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे. उसकी वजह यह है कि अंदर से जो है पस का प्रेशर है, जिसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर बल्ज आउट हो गई है और उसके फीचर्स जो है वो बल्ज आउट चीज़ के फीचर्स कहाँ नज़र आते हैं बेटा? नहीं आते ना. एक बलून जो होता है, अ बलून व्हेन इट इज़ नॉट बलून्ड, उसके सारे जो रिंकल्स हैं वो नज़र आते हैं. व्हेन यू एक्चुअली फिल सम एयर इन द बलून,
when you actually fill some balloon, when you actually fill some air in the balloon actually distends. The balloon actually distends and it becomes very much smooth, and you cannot find any features over the surface of the balloon then. Same is the case here in the tympanic membrane. देखें, अगर आपकी ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, सही है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, यहाँ पस, ये मिडिल ईयर कैविटी है, यहाँ पस का इतना प्रेशर है जिसकी वजह से बाहर पस प्रेशराइज कर रही है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बल्ज हो रही है। जब जितना ज़्यादा बल्ज होगी तो बाहर मौजूद फीचर्स क्या नज़र आएंगे? नहीं आएंगे, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये बल्जिंग होगी और फीचर्स फिर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है बेटा। राइट, so first thing is the prominent blood vessels along the handle of the malleus first, and then they involve the pars flaccida and the periphery of the pars tensa, and ultimately the whole tympanic membrane is involved. There is pus pressure जिसकी वजह से बल्जिंग होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और उसके जो लैंडमार्क्स होते हैं वो फिर नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बलून की एग्जांपल दी, जब तक आप उसको फुलाओगे नहीं तो उसके सारे रिंकल्स नज़र आते हैं। जब आप उसको फुला देते हो और उसको बल्ज कर देते हो तो फिर उसके सारे वो रिंकल्स गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। तो पहली चीज़ तो ये है बेटा एग्जामिनेशन पे। मैंने दूसरी कॉम्प्लिकेशन बताई थी कि अगर आप इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं करोगे तो ये कॉम्प्लिकेट करेगी। फिर कॉम्प्लिकेशन में पहली कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई थी कि ईयर ड्रम को परफोरेट कर सकती है। ठीक है, और ये इतनी बल्जिंग हो गई है कि किसी टाइम भी ये फट सकती है। सही है। दूसरा मैंने कहा था कि ये मेस्टोइडाइटिस करा सकती है, और अगर इसने मेस्टोइडाइटिस करा दिया एज अ कॉम्प्लिकेशन तो फिर मेस्टोइड रीजन जो है इसमें पेन, एडीमा और टेंडरनेस, दैट इज़ पेनफुल टू टच होगा। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम विद दिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फीवर का होना, मलेस और हेडेक की कंप्लेन रहती है। ठीक है बेटा, तो आई होप आई हैव डिलीवर्ड इट in the better possible way. Right beta, so let's go a little ahead and we'll now talk about some differentials of acute otitis media. What are the differential diagnosis, कि कौन सी दूसरी कंडीशंस हैं जिनको कंफ्यूज किया जा सकता है acute otitis media के साथ। One is the presence of the boil or the furuncle, the diffuse otitis externa, herpes infection and the post auricular adenitis. ये चार कंडीशंस हैं that can be confused with the acute otitis media, तो इनको differentials में रखते हैं। Diffuse otitis externa, how it can be distinguished from the otitis media, acute otitis media? The difference is, in case of diffuse otitis media, pain is not deep-seated. Discharge is not mucopurulent, it is serous. Tympanic membrane is normal, there is no conductive deafness. तो ये चार बड़े differences हैं जो कि distinguish करते हैं diffuse otitis externa को ओटाइटिस मीडिया से। ओटाइटिस मीडिया में डीप सीटेड पेन होता है, इसमें डीप सीटेड पेन नहीं होता। ओटाइटिस मीडिया में म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज आता है, इसमें सीरस डिस्चार्ज आता है। ओटाइटिस मीडिया में बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है, इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल रहती है। ओटाइटिस मीडिया के अंदर कंडक्टिव डिफनेस होती है पस की वजह से, और इसमें कंडक्टिव डिफनेस एज सच नहीं होती। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पोस्ट ऑरिकुलर एडिनाइटिस, दैट इज़ द ऑरिकल के पीछे जो लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं उनकी स्वेलिंग। अब आपको पता है जो ओटाइटिस मीडिया है उसमें भी मेस्टोइडाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में आपको पता है कान के पीछे मेस्टोइड की जो है टिप होती है। तो अगर मेस्टोइडाइटिस, अगर देखें अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेट कर गया और मेस्टोइडाइटिस हो गई। क्या हो गई? मेस्टोइडाइटिस हो गई। पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में जो मेस्टोइड होगा उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। सही है, and it will be very much similar to post-auricular adenitis. Post-auricular adenitis is something different compared to mastoiditis. Post-auricular में क्या होता है, इसी मेस्टोइड के रीजन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। तो मेस्टोइडाइटिस अलग चीज़ है, पोस्ट-auricular adenitis सेम। मेस्टोइडाइटिस अलग चीज़ है, पोस्ट-auricular adenitis अलग चीज़ है, लेकिन फ़र्क यह है कि दोनों की साइट एक होती है। मेस्टोइडाइटिस भी कान के पीछे होती है मेस्टोइड रीजन में, पोस्ट ऑरिकुलर एडिनाइटिस भी सेम जगह पे होती है, यहाँ पे मेस्टोइडाइटिस होती है, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेस्टोइडाइटिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। पोस्ट ऑरिकुलर एडिनाइटिस इज़ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, इट इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्वेलिंग ओवर द मेस्टोइड रीजन। मेस्टोइडाइटिस में भी मेस्टोइड रीजन में स्वेलिंग होती है।
लेकिन अगर मेस्टोइडाइटिस हुई है ओटाइटिस मीडिया की वजह से तो पेशेंट को डिफनेस भी होगी। अगर पोस्ट ऑरिकुलर रेटिनाइटिस है तो डिफनेस तो नहीं होगी और ईयर ड्रम भी नॉर्मल होगी। अब कहने का मकसद ये है कि कान के पीछे मेस्टोइड रीजन में स्वेलिंग है, हमें कैसे पता चले कि वो ओटाइटिस मीडिया से कॉम्प्लिकेट होने वाली मेस्टोइडाइटिस है या फिर पोस्ट ऑरिकुलर रेटिनाइटिस है? तो फिर आप देखें पेशेंट को डिफनेस है नहीं है। पेशेंट को डिफनेस है तो वो मेस्टोइडाइटिस होगी, डिफनेस नहीं है तो इट विल बी पोस्ट ऑरिकुलर रेटिनाइटिस। ईयर ड्रम में परफोरेशन है तो इट कैन बी मेस्टोइडाइटिस। अगर परफोरेशन नहीं है, नॉर्मल है ईयर ड्रम, तो इट विल बी पोस्ट ऑरिकुलर रेटिनाइटिस सिंपली, राइट? सो विल नाउ टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ द acute otitis media. Right, beta. The treatment option for acute otitis media is, because it is a bacterial infection, so you provide the patient with antibiotics. You provide the patient with the antibiotics और उसके अलावा आपको पता है ना बेटा इसमें मेन मसला क्या है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दिस इज़ द ऑरिकल, दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ द मिडिल ईयर कैविटी, राइट? मिडिल ईयर कैविटी में पस कलेक्ट हो गया है और वो पस जो है प्रेशर डाल रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर बल्ज हो गई है। हो सकता है कि इसके अंदर जल्दी परफोरेशन भी क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मायरिंगोटमी करते हैं ऐसे केस में। मायरिंगोटमी में क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं मायरिंगोटमी नाइफ की मदद से और उस ओपनिंग के थ्रू इस पस को पूरा ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है? छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं, इतनी बड़ी परफोरेशन नहीं करते, ज़ाहिर है। मायरिंगोटमी तब करते हैं जब पस बहुत बल्जिंग करा रही हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ऑपरेशन करते हैं, ओपनिंग मेड इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद द मायरिंगोटमी नाइफ। इंसिजन कहाँ पे देते हैं, पोस्ट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में देते हैं, ठीक है? और फिर जो सारी सिक्रेशन और पस होती है उसको बाहर एवैक्यूएट कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा, क्योंकि बेटा ये ऐसी कंडीशन है जिसमें म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज आता है तो कान को खुश्क रखने के लिए ऑरल टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा डीप सीटेड पेन होता है, तो एनाल्जेसिक्स देते हैं, सीडेशन देते हैं पेशेंट को ताकि नींद आ जाए और उसको पेन ना फील हो और कम हो। साथ में नेज़ल डिकंजेस्टेंट क्यों देते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का है बेटा वो मोस्टली नेज़ोफेरिंजियल रूट से आता है। तो विल मेक श्योर कि वी प्रोवाइड द पेशेंट विद द नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स एज वेल एंड विल आस्क द पेशेंट टू हैव सम रेस्ट, ठीक है? उसके बाद आखिरी चीज़ है टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी तब करते हैं जब ये पस जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाए और आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर दे और इतना बड़ा रप्चर हो, इतना बड़ा पंक्चर हो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कि वो हील ना हो रहा हो। इफ़ द परफोरेशन इज़ परसिस्ट एंड डज नॉट हील देन यू परफॉर्म द टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है? वरना तो आप मायरिंगोटमी करते हो और वो करके आप यहाँ से छोटा सा इंसिजन दे के पस को निकाल देते हो, ठीक है बेटा? लास्टली, इन द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया व्हाट इज़ द सीक्वल, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ दिस परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? मोस्टली क्या होता है कि परफोरेशन जो होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में वो हील कर जाती है और आपकी हियरिंग भी बिल्कुल सही हो जाती है, कंडक्टिव डीफनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो सुराख हुआ है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हुई है वो परसिस्ट करती है, हील नहीं होती, तो फिर डिफनेस भी रहती है पेशेंट को। और अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इतनी बड़ी परफोरेशन रहेगी तो रिकरेंट इन्फेक्शंस भी होंगे और जो बाकी जो रेजिड्यू है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो मज़ीद डिस्ट्रॉय होता रहेगा और अंदर जो मिडिल ईयर में ऑसिकल्स वगैरह मौजूद हैं वो भी, उनकी भी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, राइट? विल नाउ टॉक अबाउट द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, राइट बेटा? ओके।